तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर 4 सरकारी स्कीमात को नाफिज करने का ऐलान किया। जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 4 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि अवाम के आशीर्वाद से तश्कील दी गई तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो 4 स्कीमात रईतु भरोसा, इंद्रमा आत्मीय भरोसा, राशन कार्ड्स की इजराई और इंद्रमा मकानात को नाफिज कर रहे हैं। वजीर आला ने 4 नई स्कीमात के आगाज पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की 4 करोड़ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसिल इक़दामात किए जा रहे हैं। बेरोजगारी से निमटने, किसानों को रईतु भरोसा फराहम करने को यकीनी बनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि खवातीन के लिए भी मुख्तलिफ स्कीमात शुरू की गई हैं। आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और कम से कम कीमत पर गैस सिलेंडर देकर उनसे किए गए वादों को पूरा करने और अवाम की उमंगों पर खरा उतरने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा है कि रियासत को दरपेश मसाइल को एक एक करके हल किया जाएगा और जिन जमानतों का ऐलान किया गया था उन जमानतों पर अमल दरामद किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दलित, कबायली, आदिवासी, कमजोर तबक़ात, अक़लियतों और ख़वातीन नेज़ हुकूमत तमाम गरीबों की मदद के मकसद के साथ ही आगे बढ़ रही है। 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు 76వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఈ దేశ ప్రజలకు అందించిన రాజ్యాంగం 75 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని 76వ వసంతంలో అడుగుపెడుతున్న సందర్భంగా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఏర్పడ్డ ప్రజాపాలన ఇందరమ్మ రాజ్యం ఈరోజు 4 నూతన సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెడుతుందని మీ అందరికీ తెలియజేయడానికి సంతోషపడుతున్నాను. మీ రేవంత్ అన్నగా మీ ఆశీర్వాదం తీసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 13 నెలలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో ప్రజలకిచ్చిన గ్యారెంటీలను ఒకటొకటిగా అమలు చేస్తూ ఈనాడు ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా రైతు భరోసా, ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు, నూతన రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమాలను ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కోసం ప్రజాపాలనలో నిరంతరం శ్రమిస్తూ ప్రజలతో మమేకమవుతూ ప్రజా పరిపాలన అందిస్తూ రైతు భరోసా, నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారము, అదేవిధంగా వరికి బోనసు, ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలను ఈరోజు మనం అమలు చేసుకోవడమే కాకుండా మహిళలకు ఆర్టీసీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణము, 200 యూనిట్ల ఉచిత కరెంటు, 500 రూపాయల సిలిండర్ని ఈరోజు ఆడబిడ్డలకు అందజేస్తూ ఈ ప్రజాపాలనలో ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని చుట్టుముట్టిన సమస్యలను ఒకటొకటిగా పరిష్కరిస్తూ ఇచ్చిన గ్యారెంటీలను అమలు చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఈరోజు దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, అదేవిధంగా బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీలు, మహిళలు, నిరుపేదలందరినీ కూడా ఆదుకోవాలన్న లక్ష్యంతో ఈరోజు ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతుంది. ఈరోజు మీ ఆశీర్వాదం, మీరు అండగా నిలబడబట్టి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఎంతోమంది పేదలు సంవత్సరాల కొద్ది నూతన రేషన్ కార్డుల కోసం ఎదురు చూడడము, అదేవిధంగా రైతు కూలీలు మాకు భరోసా ఉండడం ద్వారా फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने 4 इसराइली यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। हमास ने गजा जंगबंदी पर अमल दरामद करते हुए मजीद 4 यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया है। 4 खवातीन का ताल्लुक इसराइली फौज से है। मगविया खवातीन की रिहाई के मौके पर फलस्तीन स्क्वायर पर लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। हमास की जानिब से रिहाई मिलने के मौके पर इसराइली मगवी खवातीन हंसती मुस्कुराती नजर आई। उन्होंने मजमे की तरफ देखकर हाथ भी हिलाए, जिसकी वीडियोस मंजर आम पर आई हैं और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। ख्याल रहे कि गाजा के फलस्तीन स्क्वायर में हमास ने हजारों लोगों की
موجودگی میں اسرائیلی یرغمالی خواتین کو ریڈ کراس کے حوالے کیا ہے۔ اسرائیلی خواتین کی رہائی کے بدلے 200 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مدینہ بلڈنگ چوراہے پر قومی پرچم لہرایا۔ ہندوستان کے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے یوم جمہوریہ کی تقاریب میں حصہ لیا۔ انہوں نے حیدرآباد کے پرانے شہر میں مدینہ بلڈنگ چوراہے پر ترنگا لہرایا۔ قومی ترانہ پڑھنے کے بعد مقامی عوام کو جشن جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹر سید سہیل قادری کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین الیاس بخاری، پروپرائٹر محمد کیپ مارٹ و دیگر موجود تھے۔ بھوونگری کے ایم ایل اے کے انل کمار ریڈی کے یوم جمہوریہ کے موقع پر امبیڈکر کی تصویر کے بغیر قومی پرچم لہرانے پر دلت گروپوں نے برہمی ظاہر کی اور شدید احتجاج درج کروایا۔ تفصیلات کے مطابق جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر ایم ایل اے کے انل کمار ریڈی نے بھوونگری کے ایم ایل اے کیمپ آفس میں امبیڈکر کی تصویر کے بغیر ہی قومی پرچم لہرایا۔ دستور ساز بابا صاحب امبیڈکر کی تصویر کی عدم موجودگی پر دلت گروپوں نے برہمی ظاہر کی اور ایم ایل اے کیمپ آفس کے روبرو دھرنا منظم کرتے ہوئے ایم ایل اے کے خلاف بڑے پیمانے پر نعرے بازی کی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر احتجاج کو ختم کروانے کی کوشش کی، لیکن مظاہرین اور پولیس کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ بعد ازاں مظاہرین کو گرفتار کر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر کانگریس قائدین کے قومی پرچم کی توہین کرنے اور الٹا قومی پرچم لہرانے کا واقعہ پیش آیا۔ ہندوستان کے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر تلنگانہ میں قومی پرچم کی توہین کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق میڈچل میونسپلٹی کے وویکانند مجسمہ پارک میں قومی پرچم کی نقاب کشائی تقریب میں کانگریس قائدین نے ترنگے کو الٹا لہرا دیا۔ ترنگے کی توہین پر کانگریس قائدین کو مختلف گوشوں سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے یوم جمہوریہ تقریبات میں حصہ لے کر قومی پرچم لہرایا اور سبھی کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی۔ ہندوستان کے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان ایم ایل اے قاسم محی الدین نے کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، وجیہ الزماں، ہارون فرحان، امیر الدین و دیگر کے ہمراہ ایم سی ایچ کالونی، ٹولی چوکی اور کاروان حلقے کے مختلف مقامات پر یوم جمہوریہ تقاریب میں حصہ لیا اور قومی پرچم لہرایا۔ قاسم محی الدین نے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر سبھی کو مبارکباد بھی پیش کی۔ خانزادہ ایسوسی ایشن کے صدر نواب حیدر علی نے 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر مختلف مقامات پر قومی پرچم کی نقاب کشائی انجام دی۔ ہندوستان کے 76ویں جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر خانزادہ ایسوسی ایشن کے صدر نواب حیدر علی عرف حیدر مسقطی نے کنگ کوٹی و دیگر علاقوں میں منعقد جشن یوم جمہوریہ میں حصہ لیا۔ انہوں نے قومی پرچم لہرایا اور عوام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد بھی پیش کی۔ اس موقع پر علی یوسف مسقطی، حمزہ مسقطی و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی حکومت کی جانب سے یو جی سی قوانین میں تبدیلی کو براہ راست ثقافتی حملہ قرار دیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے یو جی سی کے قواعد میں تبدیلی پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے اس فیصلے کو براہ راست ثقافتی حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی کو اس رجعت پسندانہ فیصلے کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے وفاقیت کی بنیاد کو خطرہ ہے اور یہ ڈاکٹر امبیڈکر کے نظریات کے مخالف ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ یونیورسٹیوں پر مرکزی حکومت کا کنٹرول ریاستوں کی خود مختاری کو مجروح کرنے کا کام کرے گا۔ ثقافتی اور تعلیمی اقدامات بری طرح سے متاثر ہوں گے۔
रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना इस इक़दाम की सख्ती से मुखालिफत करता है और अपने इख्तियार से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से बातचीत की जाएगी और इस फैसले की भरपूर मुखालिफत की जाएगी। దేశంలో ఉన్న యూనివర్సిటీలను యూజీసీ ముసుగులో నిబంధనల మార్పుల ముసుగులో ఈరోజు ఆధిపత్యం చెలాయించాలని కొంతమంది కుట్ర చేస్తున్నారు. ఈ వివరాలు ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ గారు లాంటి మేధావులకు తెలుసు. యూజీసీ గైడ్ లైన్స్ మారుస్తున్నారు. మార్చాలన్న ఆలోచనతో ప్రతిపాదన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పంపిస్తున్నారు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వీటిని గుర్తించే కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉండే అంశాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉండే అంశాలు, ఉమ్మడి పరిధిలో ఉండే అంశాలను కూలంకషంగా రాజ్యాంగంలో విపులంగా రాసి మనకిచ్చిండు. కానీ ఈరోజు సవరణల ద్వారా రాష్ట్ర పరిధిలో ఉండాల్సిన యూనివర్సిటీల యొక్క మనుగడ కేంద్ర ప్రభుత్వం గుంజుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను నియమించిన వైస్ ఛాన్సలర్ని భవిష్యత్తులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఢిల్లీ నుంచే నియమిస్తాము, ఈ నిబంధనలను సరళిస్తామంటున్నారు. ఢిల్లీలో ఉన్నవాడికి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆలోచన, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క జీవన విధానం ఏ రకంగా తెలుస్తుంది? ఈరోజు మన हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी। हिंदुस्तान भर में आज 76वां यौम जमहूरिया मनाया गया। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने बुद्धा भवन में वाक़े हाइड्रा के दफ्तर में कौमी परचम की नकाब कुशाई अंजाम दी और सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हाइड्रा के दीगर एहलकार भी मौजूद रहे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि बेस्ट बनने की ख्वाहिशमंद लड़कियों को सालार मिलत ट्रस्ट की जानिब से भरपूर ताउन फराहम किया जाएगा। बेस्ट बनाने के लिए उन्हें लंदन भी रवाना किया जाएगा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रान गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो चाहते हैं कि हर गरीब की बेटी बेस्ट बने। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई गरीब लड़की ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से 90% निशानात के साथ कामयाब होती है और बैरिस्टर बनने की ख्वाहिश रखती है तो लड़की की तालीम को सालार मिलत ट्रस्ट के जरिए स्पॉन्सर किया जाएगा और उसे बेस्ट बनाने के लिए लंदन भी भेजा जाएगा। अगर मेरे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से पास आउट होने वाली लड़की 90% एंड अबव मार्क्स में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन करेगी, अगर वो गरीब है, बैरिस्टर बनना चाहती है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए स्पॉन्सर करेगा और उनको बैरिस्टर बनाएगा, आपको भी बनाएगा बैरिस्टर। पढ़ो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ो पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ाने तैयार हूं, बशर्ते ये कि आप पढ़ने तैयार हो। अमीनपुर के रिहायशियों ने उनके इलाकों में तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया है। जराये ने बताया कि अमीनपुर म्यूनसिपालिटी के रिहायशियों ने इतवार को एक रैली निकाली। रैली में तमाम उम्र के अफराद ने हिस्सा लिया। अपने हाथों में प्लाकार्ड थामे एहतजाजियों ने मुताल्लिका हुकाम से उनके इलाकों में तबाहशुदा सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया और खस्ता हाल सड़कों की वजह से उन्हें दरपेश मुश्किलात भी बयान की। 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर स्कूली तलबा ने इंसानी जंजीर से हिंदुस्तान का नक्शा बनाकर हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया है। हिंदुस्तान भर में आज 76वां यौम जमहूरिया जोश खरोश से मनाया गया। हुब्बुल वतनी और भाईचारे को आम करने के लिए नोबल स्कूल के तलबा ने इंसानी जंजीर से हिंदुस्तान का नक्शा तैयार किया। यौम जमहूरिया की मुबारकबाद भी पेश की गई। तलबा के हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तलबा की सलाहियतों को सराहा जा रहा है। साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सा लिया। हिंदुस्तान के 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर पुराने शहर में वाक़ हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर में
जश्न यौम जमहूरिया मनाया गया। साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तिरंगा लहराया। दरियासना उन्होंने पुलिस दस्ते की सलामी भी ली। डीसीपी स्नेहा मेहरा की जानिब से स्कूली तालिबात में तोहफे तकसीम किए गए। स्नेहा मेहरा ने सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी और एमपी कड़ियम काव्या ने वर्धनापेट हल्के में 4 सरकारी स्कीमात की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। तेलंगाना कांग्रेस की हुकूमत की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर 4 नई स्कीमात रईतु भरोसा, इंद्रमा आत्मीय भरोसा, राशन कार्ड्स की इशराई और इंद्रमा मकानात का आगाज कर दिया गया है। रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने एमपी कड़ियम काव्या के हमरा हनमकुंडा के वर्धनापेट हल्के के हसनपर्ती मंडल के पेमर्ती गांव में सरकारी स्कीमात की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर और एमपी ने खिताब करते हुए गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए नाफिज की जा रही 4 स्कीमात की तफसीलात बताई। भारत राष्ट्र समिति ने वाइस चांसलर की तकर्रुरी से मुताल्लिक यूजीसी के नए मुसव्विदा ज़वाबित की सख्ती से मुखालिफत की है। मुल्क की दीगर अपोजिशन जमातों की तरह तेलंगाना की अपोजिशन जमात भारत राष्ट्र समिति ने भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए मुसव्विदा ज़वाबित की मुतादिद दफात की मुखालिफत की और उन्हें तेलंगाना के लिए नुकसानदा और मुल्क की वफाकी रूह के खिलाफ करार दिया। पार्टी ने इस सिलसिले में अपने एतराज़ात पर यूजीसी को मकतूब रवाना करने और यूजीसी की वेबसाइट पर उसे अपलोड करने का फैसला भी किया है। साबिक वजीर पी सबीता इंदिरा रेड्डी और साबिक रुकने पार्लियामेंट बी विनोद कुमार की क़यादत में बीआरएस कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ और मुसव्विदा ज़ाब्तों की तकरीबन 11 शक़ों में मुख्तलिफ दफ़ात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने यूजीसी के मुजव्विज़ा मुसव्विदा कानून की सख्ती से मुखालिफत की। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि ये रियासतों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं और इख्तिदार को मरकजी हुकूमत के हाथों में देने के मुतरादिफ है। बीआरएस ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत मुसव्विदा ज़ाब्तों की मुखालिफत करे और ये ऐलान करे कि पार्टी वफाकियत को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने रामदेवगुड़ा में सीवरेज लाइन की तनसीब के मंसूबे का इफ्तिताह अंजाम दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने रामदेवगुड़ा में 65 लाख रुपये की लागत से सीवरेज लाइन की तनसीब के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। बाद में कौसम मोहिउद्दीन ने इब्राहिम बाग, बगदाद कॉलोनी, एमडी लाइन्स और टोली चौकी का भी दौरा करते हुए बॉक्स टाइप ड्रेन के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। रामदेवगुड़ा के रिहायशियों ने तरक्याती कामों के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आला क़यादत और एमएलए कौसम मोहिउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, जीएचएमसी के ओहदेदार, ईई, डीआईई और प्रोजेक्ट के अफसरान के अलावा पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने अपने हल्के के केटी अनारम गांव में 4 सरकारी स्कीमात की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर 4 नई स्कीमात रईतु भरोसा, इंद्रमा आत्मीय भरोसा, राशन कार्ड्स की इशराई और इंद्रमा मकानात का आगाज हुआ है। साबिक वजीर व सूर्यापेट के एमएलए जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट के केटी अनारम गांव में मुनक्किद इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया और अवाम से खिताब भी किया। रियासत तेलंगाना के वरंगल जिले में पेश आने वाले खौफनाक हादसे में एक बच्चा समेत 7 अफराद हलाक और दीगर कई लोग जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि यौम जमहूरिया के मौके पर वरंगल जिले के मामनूर हाईवे पर एक लॉरी में ले जाने वाली ट्रेन की पटरियां लॉरी के बाजू से गुजरने वाले 2 ऑटोज पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में दोनों ऑटो में सवार 7 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लोहे की पटरियों से लदी लॉरियों में से पटरियां ऑटोज पर गिर पड़ी। हादसा इतना खौफनाक था कि 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए और दीगर 3 अफराद अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठे। खौफनाक हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए
अस्पताल पहुंचाया और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जगतगिरी गुट्टा में लापता जोड़े की गुमशुदगी की तहकीकात का हुक्म सुनाया है। जगतगिरी गुट्टा की श्रीनिवास कॉलोनी में रहने वाले चंदन मिश्रा और उनकी अहलिया रापा कासवाती की गुमशुदगी की तहकीकात का हुक्म सुनाया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जोड़े के ठिकाने के बारे में मालूमात न मिलने और उनकी हिरासत के बारे में कोई भी शवाहिद न मिलने पर तशवीश का इजहार करते हुए डीजीपी को हिदायत जारी की है कि वो गुमशुदा जोड़े का पता लगाएं और साल 2018 के एक मुजरिमाना मामले में चंदन मिश्रा के मुबैना तौर पर मुलविस होने की तस्दीक भी करें। अदालत ने ऐनी शाहिदीन की हिफाजत को यकीनी बनाने का भी हुक्म सुनाया है। अदालत 27 जनवरी को इस मामले की दोबारा समाअत करेगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ असदुल्ला ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर हज हाउस के अहाते में कौमी परचम लहराया। आज हिंदुस्तान अपना 76वां यौम जमहूरिया मना रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ असदुल्ला ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर हज हाउस की इमारत वाक़ नामपल्ली में कौमी तिरंगा लहराया और हमवतनों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड का अमला व दीगर मौजूद थे। यौम जमहूरिया के मौके पर कोमराम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर ने तख्लीकी सलाहियतों और देही सनत की खिदमत के लिए सैयद मजीद अली को अवार्ड से नवाजा। जिले कोमराम भीम आसिफाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मजीद अली ने मोटरसाइकिल इंजन से चलने वाली आटा चक्की तैयार की है और उनकी ये ईजाद देही इलाकों में आटा पीसने के मसाइल को हल करने के लिए एक इनकलाबी कदम है। यौम जमहूरिया के मौके पर जिला कलेक्टर ने सैयद मजीद अली की तख्लीकी सलाहियतों और देही सनत की खिदमत के लिए उन्हें अवार्ड से नवाजा और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।